Om Shanti. So now that we have some knowledge about who I am, who Shiv Baba is, and what is the nature of my home, today, and we have been meditating a little every day, but today we will understand a little more about the meditation that we are doing. And the practice that you do when I give you a commentary in the end, and whatever you are trying to do, that is called Rajyog meditation. So what you learn at the Brahma Kumaris here is called Rajyog meditation. Now, what is Rajyog meditation and why is it called Rajyog? So Rajyog means that yog which makes you a Raja. Okay. Now, किसका राजा बनना है? तो इस समय अपनी इंद्रियों का राजा, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, और अपने मन का राजा. तो कहते हैं दो बात, मन जीत और इंद्रिय जीत. हम अपनी इंद्रियों पर विजय पाएं और अपने मन पर विजय पाएं, और उसके लिए जो बुद्धि को सशक्त कर, बुद्धि की एकाग्रता के सहारे हम जो योग करते हैं, उसको कहा जाता है राजयोग. अब in this, what we need to understand is the mind is very connected to sense perception. So हम कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है. इसलिए जब हम मनजीत की बात करते हैं, तो ये जो राजयोग है, इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है बुद्धि योग का, है ना, क्योंकि बुद्धि योग है ये. मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का सहारा लेना होता है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी के कटु वचन सुन रहे हैं, कोई आपको कड़वा तीखा बोल रहा है. अब उसको सुनते हुए आप यदि बुद्धि में ये रखेंगे कि दिस पर्सन इज नॉट अ बैड पर्सन, ही इज अ वीक पर्सन, then your mind will experience those same words coming through your ears differently. And this is what we mean when we say it is Rajyog. So you hold the truths in your buddhi and practice it in such a way that your buddhi becomes so powerful that you are able to not have your mind affected by what you see, what you hear, whatever is going on around you, and you are able to create an experience in your mind which may not be in consonance with the quality of the vibration you are operating in. Okay, तो आप अपने मन में वो थॉट्स, वो फीलिंग्स क्रिएट कर पाएँ जो हो सकता है जो आप कानों से सुन रहे हैं और आँखों से देख रहे हैं या जीभ से चख रहे हैं, उसके अनुकूल ना हो. अगर वो आपको एक बिटर एक्सपीरियंस भी दे रही हैं, तब भी आप अपने मन को उसके प्रभाव से मुक्त रख पाएँ. दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय इंद्रिय जीत एंड मन जीत. ओके. नाउ द माइंड नॉट ओनली इज अफेक्टेड बाय sense perception, but it is also very influenced by memories. Yes, so there are memories that the mind is influenced by. So we have to, so this Rajyog helps you to gradually build that power so that you are able to keep your mind peaceful and happy despite memories, despite information coming in from the ears and eyes and everything.
So this is the aim of Raj Yoga, what we are doing. Now, in this Raj Yoga, when we say Raj Yoga is for being the Raja, also one interpretation of Raj Yoga is ये जो राजयोग है ये योग का भी राजा है. जितने भी योग दुनिया में लोग करते हैं उसका भी ये राजा है. बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी पॉसिबल योग ऑन अर्थ. जैसे when there is a list of how many kinds of yoga are practiced, then some of them are buddhi yoga, jnana yoga, bhakti yoga, karma yoga, sannyas yoga, hatha yoga, है ना. So these are some of the yoga that are practiced. Now if you see, Raj Yoga has all these elements in it. So when we say Raj Yoga का हमने उद्देश्य तो समझ लिया कि मन जीत और इंद्रिय जीत बनना है, पर राजयोग की जो विधि है वो क्या है? देह सहित देह के सब धर्मों और संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना. दिस इज राजयोग. हाउ डू यू बिकम इंद्रिय जीत एंड मन जीत? जब हम देह सहित देह के सब धर्मों और संबंधों को कुछ क्षणों के लिए भूल अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं. वो जो है जैसा है वैसे जानकर समझकर उसको याद करते हैं, तो उस याद से, उस संग के रंग से हमारी आंतरिक अवस्था बदलती है. So this is precisely the way in which Rajयोग works. तो राजयोग का जो एम है वो है मन जीत बनना, इंद्रिय जीत बनना. और राजयोग की विधि है कि कुछ क्षणों के लिए हम देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करें. अब जब हम इस विधि को अपनाते हैं तो इस विधि में ये सारे योग समाये हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक ज्ञान योग. सो until and unless you have proper knowledge about what the soul is, you know, what God is like, or what is your relationship with God, how to pull your buddhi from outside to inside, you cannot do this yoga, right? क्योंकि योग इज अबाउट अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना. तो जब तक आप इन चीज़ों का ज्ञान नहीं समझेंगे तो ज्ञान योग तो ये योग नहीं हो सकता. इसीलिए इसे ज्ञान योग भी कहते हैं. दूसरा है बुद्धि योग, क्योंकि आपका जो मन है वो इंद्रियों से बहुत अटैच्ड है. तो मन को एकदम से डिटैच करना इजी नहीं होता. तो बुद्धि, ये जो बुद्धि है जो ज्ञान समझ रही है, सुन रही है, जिसके अंदर सेंस और विजडम है, उस बुद्धि बल से आप ये सारी चीज़ें करते हैं. आप देखते हैं कि जब आप लास्ट में थोड़ी बहुत अभ्यास करने की कोशिश करते हैं उस समय आपका मन बहुत जगह भटकता है ना. लेकिन फिर भी बार बार आप बुद्धि से उस मन को कंट्रोल करते हैं. मन और बुद्धि में अगर देखा जाए तो बुद्धि बड़े भाई की तरह है ना. छोटा भाई थोड़ा नटखट है और बड़ा भाई थोड़ा समझदार है. तो बुद्धि में समझ होती है, उस समझ के सहारे हम ये योग करते हैं. सो दिस इज़ अ योगा ऑफ नॉलेज, दिस इज़ अ योगा ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द पावर जनरेटेड थ्रू अंडरस्टैंडिंग इन द बुद्धि. उसके बाद तीसरी बात आती है, ये संन्यास योग भी है, क्योंकि कुछ समय आपको अपने देह और अपने देह के संबंधों को भूल के बैठना पड़ेगा, है ना. आप अपना पूरा फैमिली पिक्चर लेके परम धाम नहीं जाना है, ठीक है. आपको अकेले जाना है. तो जब अकेले बुद्धि से शिव बाबा के पास जाना है, जो मैंने उस दिन भी आपको बताया कि सिचुएशन यहाँ है,
तो आपको इस सिचुएशन से निकल के बाबा के पास जाना है ना। तो इसीलिए इसमें संन्यास योग भी है, क्योंकि कुछ समय के लिए आपको भूलना पड़ेगा कि आप माँ हैं, पत्नी हैं, या बेटा है, या भाई है, या कोई ऑफिस गोइंग व्यक्ति है, और कुछ समय के लिए सारे रोल्स और सारी चीज़ों से बुद्धि को उपराम करके just come to the awareness that I am a point of light. That is what is sannyas yoga is about. एंड इसके बाद ये जो राजयोग है ये भक्ति योग भी है, क्योंकि जब तक आपके दिल में बाबा के लिए बहुत प्यार नहीं है, अब आप देखो भक्ति योग में जो मीरा का भक्ति योग था, उस मीरा के भक्ति योग में जो सबसे जो ब्यूटीफुल क्वालिटी थी वो लव फॉर गॉड है ना। तो वो जो प्रेम रस है वो भक्ति की निशानी है। और राजयोग बुद्धि से समझ से ज़रूर किया जाता है, पर यदि प्यार नहीं है तो राजयोग एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हो जाएगी। तो हमें अपने अवस्था से, अपने आप से प्यार, अपनी उन्नति से प्यार, बाबा से प्यार, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव, जब तक ये नहीं होगा कि सचमुच ये वही शिव बाबा है जिसके लिए मैं आज तक भक्ति में भटकती थी, या ये वही परमात्मा है जो मेरा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, मैं शायद इसको पहचानती नहीं थी कि ये आकर मुझे इस तरह से गोद में लेंगे और मुझे अपना परिचय देंगे और मुझे स्वयं से जोड़ेंगे, लेकिन अवश्य ही मेरा इसके साथ कनेक्शन रहा है। तो जब हम उस समझ के साथ कि ये वही शिव बाबा है जिससे मेरे सर्व संबंध हैं, जब हम योग लगाते तो उस योग में प्रेम का एक बहुत गहरा एलिमेंट होता। और कनेक्शन के लिए लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यू कैनॉट कनेक्ट विथ एनीबडी विदाउट लव, है ना। तो जब तक भक्ति योग नहीं होगा, जब तक बाबा से प्यार नहीं होगा, तो ये योग सफल नहीं हो सकता। इसके बाद बात आती है कर्म योग की। अब कर्म योग क्यों? क्योंकि ये जो योग है ये कोई हमें जंगल में जाके नहीं करना होता, तो हम घर में ही सुबह कुछ टाइम निकाल कर ये अभ्यास करते, और फिर बीच बीच में भी पूरे दिन में कभी कभी अपनी बुद्धि को बातों से निकाल कर इस अवस्था में टिकाते। लेकिन प्राइमरीली ये सारा कुछ हम अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या, गृहस्थ को संभालते हुए करते हैं। हमें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, हमें कोई जंगलों में नहीं जाना है, हमें कोई परिवार नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए इसको कर्मयोग कहा गया, क्योंकि ये प्रवृत्ति में रहकर किया जाने वाला योग है। कर्म करते हुए भी बुद्धि से हम बाबा को याद कर सकते हैं, इसलिए कर्म योग है। और इसके बाद अंत में मैं कहूँगी ये थोड़ा हठ योग भी है, क्योंकि जब आप सुबह उठकर बैठेंगे तो शुरू में कोई आपका योग नहीं लग जाएगा, या हो सकता है आपको कोई बहुत सुंदर अनुभव नहीं हो रहे, पर आपको बैठकर अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं बैठूं, और फिर जब तक मैं अभ्यास कर इस अनुभव को ना ले लूँ, तब तक मैं रोज़ बैठने की कोशिश करूँ। मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। जब मैंने पहली बार नौकरी ज्वाइन की थी, तो उस समय मैं सोचती कि जैसे ही मैं जाऊंगी तो मुझे ये लोग काम दे देंगे कुछ ना कुछ जॉब में। तो 2 दिन हो गए, तो मुझे कुछ काम वो देते नहीं थे, मैं बैठी रहती थी पूरे दिन जाकर। तो वो मुझे देखते रहते थे, मेरे जो बॉस थे वो मुझे देखते रहते थे, और मैं बिल्कुल कुर्सी पर टिकती नहीं थी, और मैं इधर से उधर होती रहती थी, इससे बात करूँ उससे बात करूँ। फिर मैंने फाइनली उनको पूछा, आप मुझे काम कब देंगे, आप तो मुझे कुछ भी काम नहीं दे रहे हैं। तो वो मुझे कहते हैं, काम तो तुम तब करोगे ना जब बैठना सीखोगे, अभी तो तुम्हें 8 घंटे बैठना ही नहीं आता, तो पहले तो 8 घंटे ऑफिस में बैठना सीखो। अभी आज से आपका ये काम है कि आप सुबह से लेकर शाम तक उस कुर्सी में पानी और वॉशरूम के अलावा उठेंगे नहीं, आप वहीं पर बैठे रहिए। तो
तो फिर मुझे लगा अच्छा ये भी एक काम है, अच्छा चलो ये भी देखते हैं। तो मैंने देखा मुझे ऑलमोस्ट हफ्ता भर लगा अपने आप को ट्रेन करने में कि एक जगह कुर्सी पर 8 घंटे बैठा कैसे जाता है ना। तो जब मैं 8 घंटे बैठना सीख गई फिर धीरे धीरे काम की बारी आई। तो ऐसे ही ऐसा नहीं है कि हम आज उठते ही योगी बन जाएंगे। तो हमारे बहुत सारी आदतें हैं, जैसे हमें उठने की आदत नहीं है, उठते ही अवेयर होकर बैठने की आदत नहीं है। जैसे कुछ समय हम जैसे ही उठते हैं तो हम थोड़ा सा इधर घूमें उधर घूमें, एमलेसली हम इधर से उधर होते हैं। हम कोई एजेंडा के साथ बैठकर उठते ही पढ़ने लगे या ऐसी कोई आदत हमें नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले थोड़ा हठ योग भी होगा, क्योंकि जैसे जैसे 4 बजे उठने की बात होगी, क्योंकि 4 बजे से 4:45 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब योग करना है तो पहले तो आपको अपनी आदतों के साथ थोड़ा हठ भी करना पड़ेगा कि भाई मैं उठूं बैठूं, और फिर भले ही मुझे नींद आ रही है तो मैं आँखों पे पानी मार कर भी बैठूं थोड़ी देर, क्योंकि अगर हम बैठने की या उठने की ही आदत नहीं डालेंगे तो हमारा योग कैसे लगेगा। कई बार मुझे भाई बहन कहते हैं कि मैं उठा और मेरा ना दीदी योग नहीं लगा, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं सो जाऊं, है ना। तो मैं जाकर फिर सो गया, और फिर अगले दिन मैंने सोचा योग वोग तो लगता नहीं है, तो इससे तो अच्छा नींद ही पूरी कर लें, है ना। पर सबसे बड़ी बात है इतने सालों से इतने जन्मों से सो रहे हैं, नींद तो पूरी हुई नहीं, और वो नींद कभी पूरी होने वाली भी नहीं तो इसीलिए ये जो नींद पूरी ही नहीं हो रही है वो इसी कारण, क्योंकि जिस शांति को हम नींद से चाहते हैं वो शांति वैसे तो आएगी नहीं। वो शांति तो आएगी जब हम अपने को आत्मा समझ बाबा से शांति की शक्ति भरेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे ये जो आदतें हैं, संस्कार हैं, लेट उठने के या बैठ ना पाने के एक जगह पर, आपको पता है हमने अपना कंसंट्रेशन इतना ख़राब कर लिया है बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल, कि विज्ञान कहता है कि जब एवरी पर्सन सेल्फ इंटरप्ट्स हिमसेल्फ एवरी 3 minutes these days। और इस बात को अगर आपको चेक करना है तो आप बस ध्यान देना कि सपोज़ आप खाली बैठे हैं तो आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, कोई किसी ने आपको याद नहीं किया है, कोई घंटी नहीं बजी है, लेकिन फिर भी आप अपना फ़ोन 3 मिनट में एक बार उठाकर देख ही लेते हैं आप, है ना। एवरी 3 minutes यू विल पिक योर फ़ोन एज इफ़ वो आपको आवाज़ें दे रहा हो, है ना, आपको पुकार रहा हो, ऐसा लगता है, और आप उस फ़ोन को उठाकर चेक कर लेते हैं। अब अगर कोई आपको याद कर रहा होगा तो उसमें कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई घंटी बजेगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता। पर हम हर 3 मिनट में एक बार कम से कम उस फ़ोन को उठाकर देख लेते हैं। तो ये है हमारी सेल्फ इंटरप्शन, जो हम अगर हमें कोई और इंटरप्ट नहीं कर रहा तो हम अपने आप को इंटरप्ट कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन मल्टीटास्किंग के कारण बहुत ख़राब हो चुका है। जब से कंप्यूटर्स आए तो जैसे जैसे हम मल्टीटास्किंग करने लगे, एक विंडो मिनिमाइज़ किया, दूसरा विंडो ऊपर लाया, तीसरा मिनिमाइज़ किया, तो ये जो हम एक के बाद एक करते रहे उसके कारण हमारे ब्रेन ने, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द स्विचिंग पेनाल्टी विच द ब्रेन हैज़ टू पे, और इसके कारण धीरे धीरे हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ख़राब हो गया है। तो जस्ट सिटिंग with your hands in a certain posture for half an hour is a challenge nowadays. It's not like आप सिर्फ बैठ सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए बहुत सारा हठ योग भी लगता है। और मैं आपको बताऊं, भले ही हम सोचते हैं कि योग इज़ अबाउट बिगर थिंग्स और हम अपने को आत्मा समझे, बाबा को याद करें, पर ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो अपेरेंटली छोटी छोटी हैं पर हैं बहुत बड़ी बड़ी, इनको ही बिल्ड करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इवन इफ you are not able to have any experience, but just waking up and sitting, creating the discipline to wake up at 4 a.m.,
sitting in a straight posture and keeping your hands on your side and just trying to remind yourself that I am that thinking, experiencing being inside. This is also a very big exercise, and it will help you create discipline, create concentration, which you don't have right now. और जब आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी बार आपको शरीर में खुजली होगी और आपके हाथ को ऐसा लगेगा कि मैं जाकर वहाँ खुजली कर लूँ। कितनी बार आपका बाल चेहरे पर आएगा और आपको लगेगा कि ये मुझे इरिटेट कर रहा है और मैं उसे हटा दूँ। और जैसे ही आप उठ जाएंगे ना वहाँ से, तो ना खुजली होगी ना बाल आएंगे, लेकिन जब आप वहाँ बैठे होंगे तो बहुत सारी बातें, और ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस संस्कार ऑफ सेल्फ इंटरप्शन दैट वी हैव क्रिएटेड। तो जब हम इन चीज़ों को नोटिस करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव अ टेंडेंसी टू मूव आवर बॉडी और शिफ्ट आवर बॉडी, और हाउ मेनी टाइम्स दिस माइंड जस्ट टेक्स ऑफ एंड यू आर नॉट इवन अवेयर कब तक ये बाहर घूम रहा है, तो अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हमारी बीमारी की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि मैं जब शुरू में क्लास कराती थी तो मुझे ये नहीं पता था कि सामने वाले का कंसंट्रेशन इतना ख़राब होता है। तो ऐसा होता कि मैं कल एक एग्ज़ाम्पल सुनाती, तो फिर अगले दिन जब वही सिमिलर बात आती तो मुझे ऐसे आता कि ये एग्ज़ाम्पल तो कल सुनाया था तो फिर आज नहीं सुना सकते। लेकिन मैंने देखा कभी गलती से मेरे पास और कोई एग्ज़ाम्पल नहीं था तो मैंने वही एग्ज़ाम्पल सुना दिया, तो लोग उसी इंटरेस्ट से उसको दोबारा भी सुन रहे थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि ये तो कल भी सुनाया था, तो बोलते कल तो नहीं सुनाया था आपने। तो मुझे पता चला कि पूरे एग्जाम्पल्स भी मिस हो जाते हैं और पूरी बातें भी सुनाई नहीं देती। तो आप सोचिए कि जब हम कानों से सुनते हुए भी हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता, तो फिर इस मन को हमें कितना साधना पड़ेगा बिफोर वी कैन एक्चुअली टेक अ थॉट थ्रू अ फीलिंग टू एन एक्सपीरियंस। ये जो हम अंदर का एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि यू स्टार्ट विथ आई एम अ प्योर सोल एंड कम टू द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ प्योर सोल। ना हाउ डू यू एक्सपीरियंस समथिंग? जैसे आप देखो कि किसी ने आपको कोई आते जाते कोई बात कह दी, ठीक है, अब आपको वो बात समझ नहीं आई, है ना। मेरे साथ ये एक बात परसों ही हुई, मैं आपको बताती हूँ कि किसी ने फ़ोन किया, अब फिर वो फ़ोन पे वो जो बोले वो मुझे इतना अच्छे से सुनाई नहीं दिया। फिर वो फ़ोन पर जब दूसरा कोई मेरे बगल में बैठे थे तो वो मुझे बोले कि वो आपको ये बात कह रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे थे। फिर मेरे मन में आया क्या ऐसा कह रहे थे? ऐसा तो नहीं हो सकता, पर हाँ उन्होंने ये बात इसके बाद कही थी। तो मैंने उन 2-4 बातों को रिलेट किया और फिर जो एक्सपीरियंस मुझे नहीं था कि उन्होंने कुछ मुझे कहा है, वो एक्सपीरियंस इन 5 मिनट्स होने लगा। तो ये जो कोई भी एक्सपीरियंस है वो कैसे होता है? जब आप एक ही थॉट को उसी तरीके से चलाते रहते हैं तो वो एक फीलिंग और एक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होती है। तो जैसे हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में हमारा माइंड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जैसे आपको अगर किसी ने कोई नेगेटिव बात कह दी तो वो बात तो जैसे आप कहेंगे कि मेरा बुद्धि, मैं उसको हटाना चाहती हूँ पर फिर भी हट नहीं रही है, मेरे मन से वो बात निकल ही नहीं रही है। लेकिन जब आप कोई पॉजिटिव बात को अपने मन में चलाना चाहते हैं तो वो चलती ही नहीं, उसको आप एक बार सोच लेते हैं फिर उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो परमात्मा कहते जब योग करना मतलब क्या? ये जो पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स हैं कि आई एम एन इंडिस्ट्रक्टिबल सोल। अब आप सोचो कि आई एम एन इंडिस्ट्रक्टिबल सोल, ये कहने को तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, लेकिन जब आप इसके बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे एंड इट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, इट कैन गिव यू एन एक्सपीरियंस ऑफ फियरलेसनेस विच इज़ अनमैच्ड इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो इसीलिए ये जो एक सोच को लेकर फीलिंग और एक्सपीरियंस बनाना, ये आपको मेडिटेशन में जो काम करना है उसके लिए पहले आपको बहुत सारा हठ योग करना पड़ेगा।
और उसके बाद बहुत सारा प्यार इमर्ज करना पड़ेगा, बहुत सारा ज्ञान जो है वो बुद्धि में धारण करना पड़ेगा, बहुत सारा आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे ये योग जो है ये काम करने लगेगा। और आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि पहले जो बातें आपको पिंच करती थी या जिन बातों से आपको इमोशनल रिएक्शन होता था वो अब नहीं होता। तो ये है राजयोग की प्रक्रिया। अब ये जो राजयोग की प्रक्रिया है इसमें इसको अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर बिना इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप नहा धोकर बैठें। आप जैसे उठते हैं आप चेहरे पर पानी डालें क्योंकि थोड़ा नींद खुलनी चाहिए, और उसके बाद आप डायरेक्टली बेड से उठ जाएं पहले तो, क्योंकि बेड पर अगर आप बैठकर योग करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर स्लीप के वाइब्रेशंस होते हैं, तो इसलिए यू विल नॉट बी एबल टू मेडिटेट ऑन द बेड. So it is recommended that you get out of your bed, take any place in a quiet corner and just sit on a sofa, on a chair. If you are comfortable sitting on a mat, sit on a mat. If you are not comfortable sitting on a mat, sit on a chair, on a sofa, whatever you feel comfortable in. Okay? क्योंकि बुद्धि और योग तो मन को करना है, शरीर को नहीं करना है, but you have to take care that your body is not in a posture which makes you feel lazy. Like if you're just slouching on the sofa, then you can't meditate. So you have to meditate in an awake state. तो awake state के लिए it is recommended that you keep your back straight. तो अगर आपका बैक स्ट्रेट है, अब स्ट्रेट करने में आप उसको स्टिफ ना कर दें, क्योंकि कई बार वैसे तो हम ऐसे बैठते हैं पर योग में हम ऐसे बैठ जाएंगे, है ना, तो फिर ऐसे बैठेंगे तो कमर में दर्द होने लगेगा। तो वो नहीं करना है कि जैसे आप नॉर्मली बैठते हैं उसमें से थोड़ा स्ट्रेटन होके बैठें, ताकि आपको वो अटेंशन रहे कि मैं कुछ कर रही हूँ, सो योर माइंड ऑल्सो गेट्स दैट सिग्नल। तो ये है कि अटेंटिव बैठें, स्ट्रेट बैठें और स्टिफ नहीं हो, रिलैक्स्ड हो बॉडी। और योग खुली आँखों से किया जाता है, यू डोंट क्लोज योर आइज वाइल मेडिटेटिंग। ओके, नाउ ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दिस इज कर्म योग, सो यू नीड टू क्रिएट सच अ अवेयरनेस विद इन योर सेल्फ कि जब आप काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस में हैं, सड़क पर हैं, तब भी आपको बाकी बातें डिस्टर्ब ना कर सकें, राइट? अब अगर आपने ये जो गोइंग इन का स्विच इस तरह से ऑपरेशनल किया है कि सिर्फ आप आँख बंद करेंगे तो यू बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ, तो फिर जब भी आपको जो दुनिया के एटमॉस्फेयर में ऑपरेट करना है वहाँ पर तो आप आँख बंद नहीं कर सकेंगे ना, तो फिर हाउ विल यू गो इन विथ योर आइज ओपन, राइट? तो इसीलिए ये जो योग की प्रैक्टिस है ऑफ क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस दैट आई एम अ सोल क्रिएटिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स, आई हैव अ चॉइस, द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी इज़ अ सोल, ये बातें आपको याद कब रहेंगी विथ आइज ओपन? जब आपने इन बातों को याद करने का अभ्यास किया होगा विथ योर आइज ओपन। गॉट इट? और वो कब होगा? जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे ही विथ आइज ओपन। अब क्या है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जब आंखें बंद करते हैं हमारा ध्यान अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप आंख बंद करते हैं तो कुछ देर के बाद नींद आने लगती है और ऐसा लगता है हम योग कर रहे हैं, पर वो योग नहीं, योग निद्रा हो रही होती है। ठीक है, तो इसको भी हमें समझना है कि जो हमें अच्छा लगता है वो नींद होती है, योग नहीं होता। दूसरी बात है कि कई बार कईयों को वो जो इंटरनल स्टेट है वो क्रिएट करना आंखें खोल के मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं वो। हालांकि इसका डिस्ट्रैक्टेड होने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, तो उनके लिए
टिप है कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं. व्हाट यू कैन डू इज़, आप पहले 1 मिनट आँख बंद कर लीजिए और फिर वो सीन क्रिएट कर लीजिए ऑफ दैट शाइनिंग स्टार रेडिएटिंग लाइट, एंड देन जेंटली ओपन योर आइज एंड सस्टेन इट. तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे आंखें खोलकर योग करने का अभ्यास होने लगेगा. ओके, तो ये एक बात है. तो आँख खोलकर आपको ये थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट करने हैं. मेडिटेशन इज नथिंग बट कॉन्शियस थिंकिंग, है ना. कॉन्शियस थिंकिंग इन अ मैनर that you are able to arrive at a feeling that you desire to arrive at. So you are thinking, you are using your mind in a manner that you are able to create feelings and experiences that you want to create. और ऐसे करने से आपकी जो मन की मशीन है उसका हैंडल आपके हाथ में आने लगता है और फिर आप किसी भी परिस्थिति में कॉन्शियस थिंकिंग कर सकते हैं. हमारे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनकॉन्शियस थिंकिंग, थिंकिंग दैट इज़ जनरेटेड और ट्रिगर्ड बाय द एक्सटर्नल. तो जितना जितना हम कॉन्शियस थिंकिंग करते हैं तो हमारे को वो पावर आती जाती है जिससे हम किसी भी परिस्थिति में वी कैन चूज़ हाउ वी वांट टू थिंक एंड हाउ वी वांट टू फील. ओके, तो ये एक चीज़ है. अब दूसरी बात है, आपने सुबह मोर और लेस जो भी कोशिश आपको करनी थी आपने कर लिया. इसके बाद अब ये क्या है कि एटलीस्ट 45 मिनट्स यू शुड सिट फॉर मेडिटेशन इन द मॉर्निंग, 4 to 4:45. अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, तो इट इज़ रिकमेंडेड यू रीड अ बुक और यू लिसन टू अ लेक्चर ऑन अ रिलेटेड टॉपिक. ठीक है, तो आप वो पढ़िए या सुनिए जिससे आपके थॉट्स को फ्यूल मिलेगा, आपके माइंड को फ्यूल मिलेगा. तो फिर वो जो मशीन है जो ठंडी पड़ी है वो चलने लगेगी. जैसे अभी आप क्लास सुनते सुनते सोचते हैं ना, तो अगर आप खुद से सोच नहीं पा रहे हैं तो सुनकर सोचिए कि ताकि इस मशीन की ऑयलिंग होने लगे और आपका थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे. ऑल राइट. अब इसके बाद जब आप उठे उसके बाद यू हैव टू टेक केयर कि आप सब कुछ करते भी जो आपने सुबह पीस की या रियलाइजेशन की जो स्टेट क्रिएट की है उसको आप थोड़ा सा इंटैक्ट रखें पूरे दिन में. उसके लिए एक विधि है जिसको कहते हैं जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट मीन्स एवरी 1 hour you take a 1 minute break. 1 minute break and then check what's going on. जैसे अभी आप कोरोना के टाइम पे हाथ धोते हैं ना, बार बार कुछ भी छूते हैं तो हाथ धोते हैं, है ना. तो हाथ क्यों धोते हैं? क्योंकि हो सकता है कि कुछ गंदगी कुछ आ गया होगा हाथ पे. ऐसे ही आपको हर 1 घंटे में एक बार मन को धोना है. ठीक है, और मन को धोने के लिए क्या करना होगा कि पहले मन को चेक करें कि गंदा तो नहीं हो गया, कोई पिछले घंटे की बात तो नहीं चल रही उस मन में. और अगर वो बात कोई चल रही है तो उसको फिर ज्ञान से साफ करें. अब मैं आपको इसमें जो साइंस है वो समझाती हूँ. हमारे मेमोरी ट्रैक में वो रिकॉर्ड नहीं होता जो हमारे साथ होता है. हमारे मेमोरी ट्रैक में वो रिकॉर्ड होता है जो हम उसके बारे में कहते हैं जो हमारे साथ होता है. जैसे कि आपने मुझे कहा कि आप लोग ये रोज़ वाइट कैसे पहन लेते हो. ठीक है, तो मैंने अगर अपने अंदर कहा ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है, जो मिलता है ना वो क्रिटिसाइज़ करता है कि वाइट कैसे पहन लेते हो, वाइट कैसे पहन लेते हो, ये तो बड़ा मुश्किल है. अब ऐसे कितनों को समझाएं, दुख होता है हमें. तो ये अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग की है अंदर तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा है? ट्रॉमा का एक्सपीरियंस है मुझे. अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग की है कि देखो वाइट पहनते हैं
तो जो भी देखता है उसको आश्चर्य होता है कि कैसे ये इतना वाइट पहन के मेंटेन कर लेते हैं। तो इट्स सच अ नाइस थिंग कि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिल रही है। तो वही स्टेटमेंट को मैं जैसे अपने अंदर इंटरप्रेट करती हूँ वो मेरी मेमोरी में जाता है। अब अगर मैंने पिछली रिकॉर्डिंग ये की है कि पीपल आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग मी, तो जब भी मैं किसी नए व्यक्ति को मिलूँगी आई विल ऑपरेट आउट ऑफ फियर कि कहीं अभी ये भी क्रिटिसाइज ना कर दें। और अगर मैंने ये किया है कि पीपल आर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग माई न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग, तो फिर जब भी मैं किसी से मिलूँगी तो कॉन्फिडेंस से मिलूँगी कि इनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा जो हम पहनते हैं या हम करते हैं। तो ये जो हमारे अंदर जो चित्त पर रिकॉर्डिंग होती है, वो चित्त की रिकॉर्डिंग वो होती है जो हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सीन होता है। ओके, इसीलिए जब हम एक पूरे, इसीलिए नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टोटली चेंजेस योर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग थिंग्स, है ना। जैसे अगर आप पूरे दिन में कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं, अगर आप अपने से बार बार कहते हैं कितनी प्रॉब्लम हो गई है आजकल, तो लाइफ इतनी अनसर्टन हो गई है, कितनी प्रॉब्लम हो गई है, तो आपका जो अंदर का रिकॉर्डिंग है चित्त में वो क्या हो रही है कि लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर आप वही देखते हुए कहते हैं इट इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड एवरीथिंग इज़ सच अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड आई एम एक्सप्लोरिंग डायमेंशंस ऑफ माई सेल्फ जो मैंने कभी नहीं किए, है ना। तो फिर आपके अंदर की जो रिकॉर्डिंग है वो क्या होती है कि लाइफ इज़ अ बिग ब्यूटिफुल गेम गोइंग ऑन। तो ये जो आप अपने आप को कहते हैं इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ज्ञान प्रिसाइजली इसमें आपको बहुत मदद करता है। जैसे पहले हम किसी को देखते थे तो हम सोचते थे ये इतने बड़े होकर, पढ़े लिखे होकर ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, है ना। लेकिन अब जब हम उसको देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो आत्मा है, आत्मा का तो संस्कार कुछ भी हो सकता है। और देखो आत्मा ने इस जन्म में इतना पुरुषार्थ भी किया है, पढ़ाई लिखाई भी की है, पर वो अपना संस्कार नहीं बदल पा रही है, तो उसको गुड विशेस दो, ठीक है। तो जब आप ज्ञान से ऑपरेट करते हैं पूरे घंटे, तो आपकी जो इंटरनल रिकॉर्डिंग है वो डिफरेंट होती जाती है। और आपकी जो वीडियो है जो आपको देखनी है ना पूरे दिन, आप वीडियो देखेंगे ना जो आप शूट करेंगे दूसरा कोई देखेगा क्या? जो आप वीडियो बनाते हैं ना किसी के साथ रहते हुए, वो वीडियो सिर्फ आप ही देखते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जो वीडियो किसी को नहीं देखनी है, सिर्फ हमें देखनी है, हम उसको भी हॉरर स्टोरी और दुख और पेन की स्टोरी बनाकर अपने अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब किसी ने, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग डिल्यूजनल इज़ वेरी गुड है ना। सो you can, even if somebody is giving you a comment, if you don't understand it and you take it as a compliment, it is very good for you, because in any case you can't change the situation, but at least the video you are playing in your mind is very beautiful, है ना। तो इसीलिए ये जो हम अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं इसमें हमें ज्ञान बहुत हेल्प करता है। और दूसरी बात है, जब हम उस रिकॉर्डिंग को रिप्ले करेंगे फिर, तो हमें वो बिटर एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जब आप सुबह अपनी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, आई एम अ सोल, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, नाउ आप देखो कई बार मनुष्य के अंदर कुछ आदतें होती हैं जिन पर वो विजय नहीं पा रहा, है ना। तो कई बार हम अपने को भी कहेंगे कि आई एम अ सोल या आई एम अ प्योर सोल, तो हमारे अंदर वो सेल्फ इस्टीम नहीं है कि ऐसा फील करें आई एम अ प्योर सोल। और फिर कई बार लगेगा कि शायद मैं झूठ ही बोल रही हूँ, 10 मिनट हो गए अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, कहाँ हूँ, क्योंकि अंदर तो इतनी खलबली हो रही है। तो फिर उस समय पर ये याद रखना कि चलो मैं तो आत्मा हूँ, मेरे अंदर आज संस्कार भी बहुत सारे इधर उधर के जमा हो गए, लेकिन मैं हूँ तो परमात्मा की संतान, और जब वो परफेक्ट है तो मैं उसका बच्चा इम्परफेक्ट नहीं हो सकती। तो
तो कई बार जब हमारे को अपने पर भी फेथ नहीं होता, तो अपने आप को बाबा के साथ रखने से या बाबा के संबंध में रखने से और इस समझ से रखने से कि मैं आज जो हूँ वो कल नहीं रहूँगी, कल मेरा संस्कार बदल जाएगा, आपको अपने ऊपर सेल्फ एस्टीम आने लगता है। और जब उस सेल्फ एस्टीम के साथ आप दुनिया में जाते हैं, पूरे दिन ऑपरेट करते हैं, तो आप कम बिटर स्टोरीज़ अपने अंदर भरते हैं। आप अपने को जो स्टोरीज़ कहते हैं वो बेहतर वाली होती है। आपने कभी देखा है कि कोई आपको कोई बात कह रहे हैं और फिर आप उन पर बिल्कुल बरस पड़े और फिर मिडवे आपको रियलाइज़ हुआ कि वो ये बात कह ही नहीं रहे थे, वो तो कुछ और कह रहे थे या वो उनका भाव ये नहीं था, या वो तो किसी और बात को लेकर बात कर रहे थे और आप वो कल वाली बात को लेकर शुरू हो गए। तो ये क्या होता है कि जब हमारे अपने अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है, कहते हैं चोट पे चोट बहुत जल्दी लगती है ना, चोट पे चोट बहुत जल्दी लगती है। आप देखना कि वैसे आपको कभी चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर रास्ते में जाते आपका पाँव कहीं टकरा गया और आपको चोट लग गई, तो उस चोट लगे हुए पाँव पे बार बार चोट लगती है। फिर आप कहीं भी जाएंगे तो ऐसा लगता है यही पाँव बार बार टकरा रहा है। तो ऐसे ही जहाँ पर हम इमोशनली हर्ट होते हैं, विच इज़ कॉल्ड लो सेल्फ एस्टीम, जब हमारे को ये अंदर आई एम प्योर पीसफुल वो एहसास नहीं होता, हमारे अंदर कोई हर्ट या पेन होता है, तो फिर वो जो पूरे दिन में हम बहुत सारा पेन भी एक्यूमुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वो 1 घंटे में जो भी कोई कुछ कहता है करता है, तो हम उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि मुझे ही कह रहे हैं। बगल वाले कमरे में भी कोई बात कर रहा है तो कहेंगे देखो दरवाज़ा बंद कर रखा है ना, क्यों कर रखा है? इसीलिए क्योंकि मैं ही बाहर हूँ, तो मेरे बारे में ही कुछ बात कर रहे होंगे, इसीलिए मेरा दरवाज़ा बंद करके मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो ये बात क्यों होती है? क्योंकि अंदर लो सेल्फ एस्टीम है। तो जब आप सेल्फ एस्टीम, माना सेल्फ एस्टीम मीन्स योर ऑनर, योर सेल्फ ऑनर दैट आई एम अ पीसफुल ब्लिसफुल डिजर्विंग ब्राइट वर्दी सोल एंड आई एम अ चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम सोल, जब ये आप सुबह बिल्ड करते हैं ना, तो सेल्फ एस्टीम के कारण आप दिन में भी कम चोटें खाते हैं। और जब आप दिन में भी थोड़ा कॉन्शियसली चलते हैं, जब आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं नॉलेजफुल रहने का, और आप कोई भी बात देखते हुए याद रखते हैं कि ये भी एक आत्मा है, ये जो भी कह रहे हैं कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट देयर संस्कार, नॉट अबाउट मी, है ना। तो जब आप ये ज्ञान, जो हम इतने दिनों से ज्ञान सुन रहे हैं ना, जब इस ज्ञान को आप ध्यान में रखते हैं ना, तो आपको कम छींटे लगते हैं। फिर जहाँ पर आपका बायस है, प्रेजुडिस है, जहाँ पर आप अपनी ईगो को सरमाउंट नहीं कर पा रहे, वहाँ पर इट इज़ वेरी गुड टू रिमेंबर दैट दिस इज़ अ चाइल्ड ऑफ गॉड। जब आप ये याद रखते हैं कि ये भी परमात्मा की संतान है, चलो ठीक है मेरा इनसे संबंध ठीक नहीं है, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम एक ही सोशल स्टेटस के हैं, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ डिज़र्व करते हैं, लेकिन ये है तो भगवान का बच्चा ना। तो उस बात को याद रखने से आप अपनी ईगो और प्रेजुडिस को भी ओवरकम कर पाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते कि जब तुम सुबह अपने आप को ये स्मृति दिलाओगे, तो दिन भर तुम कम चोटें खाओगे, और जो तुम्हारे दिलों के बीच में जो दरारें पड़ गई हैं, गड्ढे आ गए हैं, उनको भी तुम थोड़ा ब्रिज कर पाओगे। तो लिविंग कॉन्शियसली फर्स्ट इज वेकिंग अप एंड थिंकिंग कॉन्शियसली, देन लिविंग इन अ मोर अवेयर स्टेट। तो जानकी दादी जो हमारी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थी, तो वो हमेशा यही बात कहती कि जैसे तुम रास्ते में जाते हो तो कीचड़ अगर पड़ा है, तो अगर तुम उस कीचड़ से थोड़ा अपने कपड़े को बचा कर चलोगे तो अच्छा है, वरना अगर वो कीचड़ लग गया तो फिर तुम्हारा बहुत सारा साबुन और पानी और टाइम जो है उसको साफ़ करने में जाएगा। तो इसीलिए हम ये जो
दुनिया में चलते हुए 1 घंटे में जो भी कीचड़ अपने ऊपर लगा लेते हैं उसको फिर साफ करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए थोड़ा लिविंग कॉन्शियसली, लिविंग विथ अवेयरनेस कि ठीक है ये आत्मा है, ये अपने संस्कार से ऑपरेट कर रही है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो ठीक है कोई बात नहीं, वो मुझे जो भी कह रहे हैं मैं तो पीसफुल हूँ ना, आई कैन लिसन इन पीस, या बाबा को बीच में रखना। और अगर 1 घंटे के बाद हम एक नज़र डालें और चेक करें कि कोई कीचड़ फिर भी तो नहीं लग गई है, तो अगर फिर भी लग गई है तो उसको फिर ज्ञान के पानी से साफ कर दें, फिर उसको थोड़ा नॉलेज की लाइट में देखें और उसको साफ कर दें, ठीक है। उसके बाद पूरे दिन ऐसे बिताते बिताते जो शाम को आपकी गंदगी है वो काफ़ी कम होगी, और इसीलिए जब ये कम होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। अब सोने से पहले आपको क्या करना है, कई बार ऐसा होगा कि सोने से पहले जब आप पूरे दिन की अपनी वीडियो को दोबारा चेक करेंगे कि मैंने क्या किया, पूरे दिन कैसे सोचा, कोई हर्ट और पेन तो नहीं ले लिया, कोई कंप्लेंट या क्रिटिसिज्म तो मेरे मन में नहीं चल रहा, तो कई बार ऐसा होगा कि फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा पूरे दिन का, है ना, कोई फियर, कोई इनसिक्योरिटी। अब हमारी एक जीवन में समस्या है, वो समस्या क्या है, हमें ये बहुत क्लैरिटी है कि ये सोचना गलत है, ये करना गलत है, पर अगर हमें पूछा जाए कि ठीक है ये सोचना तो गलत है इस सिचुएशन में, या ये करना गलत है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिला कि कल इसी सिचुएशन में कुछ और सोच सकें तो आप क्या सोचेंगे, तो मोस्टली हमारे पास उसका आंसर नहीं होता, है ना। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे एक यूथ ने एक बार फ़ोन किया और एक्चुअली उनके घर में बहुत झगड़ा हुआ था क्योंकि वो नया नया बिजनेस करने लगा था और वो ड्रिंक कर कर घर आया था, तो पेरेंट्स बहुत अपसेट हुए थे और बहुत झगड़ा हुआ था। तो फिर उसके पेरेंट्स ने भी मुझे फ़ोन किया था और फिर उस बच्चे ने भी फ़ोन किया, तो फिर मैंने उसको पूछा कि तो मुझे कहता है फ़ोन करके, अब आप भी बोलो कि मैं ख़राब हूँ, मैं बिगड़ गया हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मैं गुमराह हो गया हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, आप मुझे बताओ क्या हुआ था, मुझे पता नहीं है कुछ भी। तो मुझे कहता है कि देखो कल एक बिज़नेस डील हो रही थी और मेरे जो क्लाइंट्स थे वो बैठे थे और जस्ट वो डील इट वाज गोइंग थ्रू, और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक ड्रिंक ले लो हमारे साथ। तो जब वो ड्रिंक उन्होंने ऑफ़र की तो मुझे ऐसा लगा ऐसा ना हो कि मैं अभी रिफ्यूज़ करूँगा तो मेरे ये बिज़नेस डील ना हो, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर ड्रिंक कर लिया। और जब मैं घर गया तो ये ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जो पिताजी थे उन्होंने दरवाज़ा खोला, और वैसे तो मैं चुपचाप जाके सो जाता, लेकिन फिर वो सारा झमेला हो गया। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, तो इसका मतलब अभी तो आप बिज़नेस करते ही रहेंगे, तो रोज़ ही पिएंगे। तो फिर मुझे कहता है ऐसा थोड़ी है, मैं रोज़ क्यों पीऊँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो तो ठीक बात है कि आपका इरादा नहीं है, लेकिन रोज़ अगर यही सिचुएशन होगी, आज मान लीजिए शाम को फिर क्लाइंट्स आए, फिर आपकी डील एकदम इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग गोइंग थ्रू, एंड देन अगेन उन्होंने ड्रिंक ऑफ़र की, तो आप क्या करेंगे। तो फिर वो सोचने लगा और मुझे कहता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप रोज़ नहीं पिएंगे, आपने कहा ना कि मैं रोज़ नहीं पीऊँगा, तो आपके पास कोई स्ट्रेटजी भी होगी, तो आप सोचिए कि आज आप यही सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे। तो उसने कहा क्या करूँगा, अब ऐसे मना करना तो बहुत ख़राब लगता है। तो मैंने कहा फिर सोचो ना कि क्या करना है, तो और आप सोच के मुझे बताना। तो अगले दिन मुझे फ़ोन करके कहता है ठीक है, मैं कह दूँगा कि मैं कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ। तो मैंने कहा तो ये जो युक्ति है ये आपको अपनी बुद्धि में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगली बार जब सेम सिचुएशन आएगी तो आपका वही जो संस्कार है
ना नहीं कह पाने का वो फिर एक्टिवेट होगा, और उस संस्कार को आपको एक सल्यूशन दे के पहले से रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये जो माइंड है ना, ये इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफ्रेंशिएट करना नहीं जानता है ना। ये जो बात मैं आपको कह रही हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन है, और इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आपको मैं गुलाब जामुन दिखाऊं, है ना, या खिलाऊं, या आप सिर्फ उसके बारे में सोचें, तीनों टाइम आपका मुंह सैलिवेट करेगा। अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है तो है ना, तो आपके मन को ये नहीं पता अभी ये खिलाने वाले नहीं है, अभी ये सिर्फ बोल रहे हैं तो मुझे खुश नहीं होना है। तो मन हमारा इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, इसीलिए हम जो करते हैं वो भी हमारा संस्कार बनता है, तो जो हम सोचते हैं वो भी बनता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमारे पास एक सिचुएशन में हम अपने संस्कार पर विजय नहीं पा पाए, तो हम बैठकर वो विजुअल बनाएं कि सिमिलर सिचुएशन में कल मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा रिस्पॉन्स डिफरेंट हो। मैं अपनी बुद्धि में कौन सी बात लाऊं, मैं ऐसे शब्द की जगह कौन सा शब्द उपयोग करूं, अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूं। अगर मुझे पता चलता है कि आज मेरे से ये गलती हुई, तो रात को मैं बैठकर अपनी रीप्रोग्रामिंग करूं कि अगर यही सेम सिचुएशन कल आई तो मैं किस तरह से इसको डिफरेंटली टैकल करूंगी। सिर्फ मैं ये नहीं करूंगी मुझे ये नहीं अच्छा लगता या मुझे पता चलता है ये गलत है इज़ नॉट इनफ, क्योंकि यू नीड टू हैव अ संस्कार विद इन योर सेल्फ हाउ टू डिफरेंटली टैकल इट। तो ये जो स्टेप्स हैं ये राजयोग के स्टेप्स हैं कि पहले तो हम सुबह सुबह अपनी अवस्था बनाएं, देन वी लिव विथ अवेयरनेस, ऑपरेट विथ अवेयरनेस, जिसको हम कहते हैं कि तीसरी आँख भी खुली रखो, सिर्फ दो आँखों से मत देखो, है ना, पूरे दिन भी तीसरी आँख भी खुली रखो, और याद रखो मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास चॉइस है, वो सामने वाला एक आत्मा है, उसका संस्कार है, उसके हिसाब से वो काम कर रहा है, परमात्मा हमारे बीच है, इनडायरेक्ट कर्म के ज्ञान को याद रखो। तो जब ये सारी बातें आप अपनी बुद्धि में रखेंगे दिन भर, तो ये जो दिन भर है ये आपका बदलेगा। 1 घंटे में आप अपने मन की सफाई करते रहिए, और रात को सोने से पहले अपने अंदर एक डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट हैपेंड टुडे ये भी बना कर रखिए, है ना। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में कोई है जो दिन भर बैठा रहता है और आप पूरे दिन काम करते हैं, है ना, तो जितना भी आप ज्ञान सुनेंगे, पर जैसे ही आप उसको देखेंगे आपको गुस्सा आएगा ठीक है। फिर जब आप रात को अपनी पूरी चेकिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा आप बहुत झल्ला चुके हैं, डिस्पाइट सुबह के मेडिटेशन के, और डिस्पाइट 1 घंटा में चेकिंग करते हुए भी आप बहुत इरिटेट हो चुके हैं। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो आप फिर सोचिए कि आप अपने एटीट्यूड में ऐसा क्या रखें कि आप उसको फिर कल दोबारा बैठे हुए देखें, फिर दोबारा आप उसको 10 बार कोई काम कह रहे हैं पर वो टस से मस नहीं हो रहा, और आप वो सब कुछ देखते हुए भी क्या ऐसा बुद्धि में रखें कि आप उसको देखते हुए भी शांत रह पाएँ, राइट। तो क्या रखेंगे बताइए इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में बहुत लोग फंसे हुए हैं आजकल ना, तो क्या रखना है बुद्धि में जिससे आप उस सिचुएशन में डिफरेंटली सोच सके या फील कर सके। हाउ डू यू डील विद दिस? सेम प्रिंसिपल है कि वो एक दूसरी आत्मा है, हाँ, अपना संस्कार है, हाँ, और वो कमजोर है, उसकी बैटरी हाँ, चार्ज है, हाँ, हाँ। फिर आपका मन कहेगा ठीक है कमज़ोर है लेकिन रोटियां तो 2 ज़्यादा ही खाता है तो अपनी रोटियां तो खुद बनाए है ना। तो आपका मन बहुत सारी बातें कहेगा, लेकिन उसके बावजूद आप कैसे अपने मन को शांत रखें उसकी युक्ति आपको लगानी पड़ेगी, है ना। अगर एक बात वर्क नहीं करती तो दूसरी पे जाइए, है ना। दूसरी क्या है
कि मैं जो करूँगी वो मेरा संस्कार बनेगा, वो तो बैठा ही रहता है। लेकिन अगर मैं दिन भर इरिटेट होंगी तो मैं बहुत इरिटेबल हो जाऊंगी, एंड आई डोंट वांट टू मेक दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। तो लेट मी बी सेल्फिश हियर एंड फोकस ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई वांट टू क्रिएट। पहले दिन कराया था ना, थॉट से फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट एंड देन पर्सनालिटी। सो आई डोंट वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। वो जो करता है वो करे, मुझे उसमें कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तीसरी बात, मैं जब उसके बारे में सोच रही हूँ मेरा कर्म बन रहा है, और मैं जितनी नेगेटिव थॉट्स एनवायरनमेंट में रिलीज करूँगी दे विल कम बैक टू मी। सो लेट मी फोकस ऑन द कर्मा आई एम क्रिएटिंग, नॉट ऑन व्हाट ही इज़ डूइंग। तो ये जो बातें हैं ये आपको अपने अंदर बहुत सारे, कहते हैं ना जब युद्ध में के स्थल में आप होते हैं तो आपकी तरकश में बहुत सारे तीर होने चाहिए। अगर एक तीर आपने फेंका और वो फेल हो गया तो दूसरा भी होना चाहिए कि आप उससे घायल कर सके। तो ऐसे ही ज्ञान को बाण कहा जाता है, कहते ज्ञान बाण, है ना। तो बहुत सारे ज्ञान बाण आपके तरकश में होने चाहिए ताकि एक विफल हो जाए तो दूसरा लगाए, दूसरा विफल हो जाए तो तीसरा लगाए। लेकिन कुछ भी हो, आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को घायल करना ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, people will come and go, situations will come and go, but you will live with yourself forever until eternity. So you better be good to yourself. ठीक है, सो यू कैनॉट अफोर्ड टू बी बैड विथ योर सेल्फ, यू हैव टू बी गुड टू योर सेल्फ बिकॉज यू विल लिव विथ योर सेल्फ अंटिल इटर्निटी। तो ये जो तरकश में आप तीर भर कर रखेंगे कि मुझे अपने साथ रहना है एंड आई बेटर बी गुड टू माई सेल्फ, लेट मी नॉट अलाउ समबडी टू वॉक विद डर्टी फीट ऑन माई माइंड। जब आप ये कुछ एक युक्तियाँ अपने अंदर रखेंगे ना, जो इस क्लासेस में आपको बहुत सारी मिलेंगी, और जितना आप उन्हें याद रखेंगे तो आप अपने मन पर विजय पा सकेंगे। ऑल राइट, चलिए थोड़ा योग करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। हाँ जी। Today in your section you will speak only in English, sister, but I don't understand English. अच्छा, हिंदी यू डोंट अंडरस्टैंड? Yes, sister. I already have message translate in English. Okay. Anybody else doesn't understand Hindi? Okay. But also not only from me, my family members also listening to हाँ जी, 1 second, could you repeat? हाँ, एक बार रिपीट करिए, रिपीट प्लीज। all of my family members also listening your class, sister. Okay, I'm sorry, actually I didn't have an idea that there's somebody who doesn't understand Hindi. Okay, I'll make sure from tomorrow onwards we speak in English. Fine. Okay, Om Shanti. Let's meditate for some time. Let me take a few seconds and unplug my mind from everything else around me. I pull the signals of my mind from everywhere else and bring it to myself. I only see myself at this point. I am the pure being of light sitting in the center of the forehead. This is me.
My purity, my peace is my personality. My purity, my peace creates my vibration. My worth depends on my purity and my peace. Let me see myself. Let me pay attention to the purity and peace in myself. A star of peace, a star of purity, radiating beams of purity and peace in the center of the forehead. My purity and peace are what define me. And I take care to always stay peaceful and with pure feelings during the day. While seeing everything, hearing everything, being in the middle of situations and behaviors, I take care to ensure that I stay peaceful and in good feelings. This is my priority. This is who I am. This is what matters most to me. Just sit in this feeling for some time, that my purity and peace are what make me worthy. Om Shanti.